નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે પ્રથમ પરીક્ષા 2022-23 ધોરણ 10 અને બપોર પાળીનું જે પેપર હિન્દી વિષયનું હતું તે હિન્દી વિષયના પેપરમાં તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા, આ વિડીયો તમને અવશ્ય ગમશે, માટે આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું અને તમારા અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને બીજી બાબત કે આપણી આ ચેનલ ઉપર જો નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું હજી સુધી જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર સમયની અંદર આપણે આ ચેનલ ઉપર લિબર્ટીના તમામ વિષયના સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો બનાવવાના છીએ. તો એ વિડીયોની નોટિફિકેશન પણ સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10 બપોર પાળીનું પેપર હિન્દી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો સમય 3 કલાકનો હતો અને 80 ગુણનું પેપર હતું. જો સૂચનાઓની વાત કરવામાં આવે તો આ જે પ્રશ્નપત્ર હતું એની અંદર 4 વિભાગ આપવામાં આવેલા હતા અને પ્રશ્ન નંબર 1 થી 51 હતા. અને આની અંદર બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપવા અનિવાર્ય હતા. ત્યારબાદ તમે અહીંયા જમણી બાજુ જોઈ શકશો તો એ અંકો શું છે, તો કે ભાઈ પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે. અને એવું કહેવાય છે કે ભાઈ નવો વિભાગ છે, નવા પાના ઉપરથી આપણે લખવાની શરૂઆત કરવાની હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વિભાગ એની ચર્ચા કરીશું. તો વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ હતો. તો એની અંદર पहली सूचना જોઈએ તો કે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. તો અહીંયા 2 પ્રશ્ન આપેલા હતા, દરેકનો 1 ગુણ છે. તો અહીંયા જે પ્રશ્ન આપેલો છે અને એની નીચે 4 વિકલ્પ આપેલા છે. એ વિકલ્પમાંથી આપણે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખવાનો હતો. તો એની અંદર પ્રશ્ન પહેલો છે कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था. तो विकल्पनी बात करिए तो एनी अंदर ऋतु संहार के लिए, बी गीत संहार के लिए, सी संगीत संहार के लिए या डी नाट्य संहार के लिए. तो आनो जो साचो उत्तर है ए छे ऋतु संहार के लिए. बीजो प्रश्न, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था. ए अमीर गरीब का, बी महिला पुरुष का, सी ऊंच नीच जाति का या डी कुशलता अकुशलता का. तो आनो साचो उत्तर आवे छे बी महिला पुरुष का. આગળના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ તો સહી વિકલ્પ ચૂનકર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ. તો સાચો શબ્દ પસંદ કરીને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. तो तीजो प्रश्न है, तीजी खाली जगह जो है तो प्राचीन खाली जगह ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था. तो विकल्पों ની અંદર ચીનીઓ અને ભારતીયો આપેલા છે. તો આપણો સાચો ઉત્તર આવે છે ચીનીઓ. ચોથું, सुधा मूर्ति ने स्वयं को खाली जगह के लिए समर्पित कर दिया. तो विकल्पों ની ચર્ચા કરીએ તો સમાજ સુધાર અને શિક્ષણ આપેલો છે. તો એની અંદર આપણો સાચો ઉત્તર આવે છે સમાજ સુધાર. ત્યારબાદ આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. એટલે અહીંયા આપેલા વાક્યોમાંથી આપણે સાચું વાક્ય પસંદ કરી અને આ વાક્ય છે એ ફરીથી આપણે લખવાનું છે, પૂર્ણ કરવાનું છે. पांचवो विकल्प जो है तो यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह ए पगड़ी न पहनता, बी संस्कृत भाषा में बात करता या सी हरिणों का शिकार न करता. तो विद्यार्थी मित्रों, आनो साचो उत्तर है सी हरिणों का शिकार न करता. छठो प्रश्न, ईसाई पादरी के अनुसार ए हम ज्यो के त्यों पड़े हुए हैं, बी हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते या सी हम जिम्मेदारी नहीं समझते. तो आनो साचो उत्तर बी है कि हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते.
ત્યારબાદ આગળના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર એક એક વાક્ય में लिखिए। અને એની અંદર 7મો પ્રશ્ન જોઈએ કે उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। तो उत्तરની વાત કરીએ तो उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशुकन के डर से नहीं रो रही थी। 8મા પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ तो कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई। 9मो है दंतुल ने हरिण सावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा। तो आ तमामे तमाम जे प्रश्न है ये प्रश्नना उत्तर आपणे जोई लईए। तो एनी अंदर आपणो जे 8मो प्रश्न है ये प्रश्ननी चर्चा करिए तो कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई। तो उत्तर की बात करिए तो कुटुंब व्यवस्था इस प्रकार नष्ट हो रही है कि हम गुणी नवयुवकों को बागडोर संभालने नहीं देते। अंत तक पिता पुत्र को घर की व्यवस्था के कार्य करने नहीं देता। 9मो प्रश्न दंतुल ने हरिण सावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा। तो हरिण सावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था इसलिए दंतुल ने उसे अपनी संपत्ति कहा था। ત્યારબાદનો જે પ્રશ્ન છે કે खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है कैसे। यानी अथवानी अंदर माँ के कष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है। आगळ निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। और 12मो प्रश्न है कि हम बूझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। अथवानी अंदर खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। आगना प्रश्न की चर्चा करिए तो निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। अथवानी अंदर प्रश्न पूछायो है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो आ दरेक प्रश्नना उत्तरनी आपणे चर्चा करी लीए। 11मो प्रश्न है कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है कैसे। तो एनो उत्तर जोईए तो खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है, इसलिए अगर हम उदास रहेंगे तो दूसरे लोग भी उदास रहेंगे। हमारी खुशी से वे लोग भी खुश होंगे। आगनो प्रश्न कि माँ को रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है। तो उत्तर जोइए तो माँ को अनुमान हो गया था कि वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ थी और पूरी तरह से भीग गई थी। माँ को अपवाद की चिंता थी इसलिए मल्लिका माँ के रुष्ट होने का यही कारण मानती है। 12वां प्रश्न की चर्चा करी लिए तो हम बूझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। तो लोग समझते हैं कि जो आदमी बूझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है वह धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है, लेकिन सूखा चेहरा वहाँ स्थान नहीं पा सकता। प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वह हम एक बूझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। 12वां प्रश्न खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। तो घी और मसालों की सुगंध के कारण काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी।
इसी तरह उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। लोग चाहे जो भी कहा करे, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाओगी। આગળનો પ્રશ્ન છે કે तुम लोगों में उदारता नहीं है, यह पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर જોઈએ तो जब प्रकाश जी ने हमारा देश क्यों प्रगति नहीं कर रहा है ऐसा एक वृद्धा से पूछा तो उसने कहा कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, अर्थात भारत में लोग एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए, लेकिन गुणवान को योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिलता। इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता। इसके कारण समाज और देश को नुकसान होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ विडियोनी अंदर फक्त આપણે વિભાગ એના તમામે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોયું। હવે આગળના ભાગ 2 ની અંદર આપણે વિભાગ બી નું પ્રશ્નોના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને આવી જઈશું। તો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો કોઈક નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।